حضرت رومی نے مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ کے پاس نا دروازے پہ ایک عورت مانگنے آئی، فقیر نہیں، بادشاہ کو پسند آ گیا، اس نے نکاح کر لیا۔ ابھی سویرے فقیر تھی، شام کو ملکہ بن گئی، 1 منٹ لگا، صبح فقیر تھی، مانگ رہی تھی، ہاتھ پھیلا رہی تھی، شام کو ملکہ بن گئی۔ بڑا اعزاز دیا بادشاہ نے، بڑا نوازا، 20 کنیزیں، کام کرنے والی، مال دولت سارا کچھ۔ لیکن وہ بی بی روز روتی تھی، کبھی مصلی پہ بیٹھ کر روتی، کبھی قرآن پڑھ کے روتی، صبح سے شام تک 20 دفعہ کنیزیں دیکھتی تو روتی۔ بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ اس کے ابرو کا اشارہ ہو جائے تو جو یہ مانگے اسے دے دیا جائے، لیکن وہ روتی رہتی، وہ روتی رہتی، وہ روتی رہتی۔ ایک دن جو کنیزوں میں سے ذرا سیانی تھی وہ آ گئی، کہنے لگی بی بی بات سن، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم غریب لوگ ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، بے اختیار ہیں، تو مالدار بھی ہے اور با اختیار بھی ہے اور موج میں ہے، تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں میں کیوں روتی ہوں، میں جب پلٹ کے اپنا ماضی دیکھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی، اس نے نظر کرم کر دی ہے، تو اب سارا دن روتی رہتی ہوں کہ کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے۔ میں اس قابل نہیں تھی، میں اس قابل نہیں تھی، پتہ تے سارا ہے نا سردار لوکی تھی، یہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا اسی، قابل نہیں تھی۔ اور پھر ان کنیزوں کو کہنے لگی سنگ سہیلیوں آؤ بیٹھو، میرے لیے دعا کرو کہ وہ جو میرے پاس شفقت کرتا ہے وہ ہمیشہ مجھ سے راضی رہے، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں کسی جگہ پریشان نہ، کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے۔ اس جارو وہ جو ظرف والے لوگ تھے ان کا تو یہ سٹیٹس تھا کہ وہ روتے تھے، اور یہاں 2 نیکیاں کر کے زمانے کو بتانا، 2 خدمتیں کر کے تعریف مانگنا، اجر کا سوال کرنا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صبح قیامت کچھ لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اے اللہ ہم حاجی تھے، نمازی تھے، سخی تھے، عبادت گزار تھے۔ اللہ فرمایا کہ کیا لینے آئے ہو؟ اللہ وہ مسجد بنائی، مدرسے میں تعاون کیا، فلاں شیخ کی نوکری کی، فلاں جگہ گئے، جلسہ کرایا، محفل کرائی، سرائے بنایا اور صاف پانی کا کنواں لگوایا، اور جناب ہم نے وہ فلانے کی تو اللہ فرمائے گا میرے لیے تھوڑی کی تھی، جاؤ جن کو دکھانے کے لیے کی تھی ان سے جا کے اجر مانگو، تمہارا تو خیال تھا بابا ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، اور مٹی دیں، مٹی رہنا ہی ایمی کا دی بلے بلے، آج مٹی دے اٹھتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ عجیب بات کرتے صاحب لوگ۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی، میرے طرف دیکھیے گا، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہے، توجہ کرنا۔ کہتے ایک بی بی حضور کے پاس آئی، اپنا علاقہ چھوڑ آئی، آ کے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں، سسرال بھی، میکا بھی، ننیال بھی، ددیال بھی، میں ہر ایک کو چھوڑ آئی، میں جائیداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں، مال دولت بھی چھوڑ، ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں، سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی، میں حضرت عائشہ کے برتن دھویا کروں گی، میں بھی نوکری کروں گی، حاضر ہے۔ فرماتے ہیں رسول پاک نے بچہ اصحاب صفہ میں رکھ لیا، اصحاب صفہ میں، اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا، بڑا میٹھا، بڑا دھیما، بڑا وفاشار، وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا، وہ نماز دلچسپی سے پڑھتا، وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا، وہ رسیلا، وہ سنجیدہ، وہ کم گو، وہ میٹھا، وہ پیارا۔ کہتے ہیں بڑی دل کشا طبیعت، اس کی مقناطیسی سی شخصیت، طبیعت کھنچی چلی جائے اس کی طرف، بڑا حسین و جمیل وہ نوجوان۔ اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے، بڑے مال والے، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، ہر رشتہ ناتا توڑ کے رب رسول سے یارانہ لگایا ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، شدید علیل ہوا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم قریب جا کے بیٹھے تیمارداری کرنے تو اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کانپنے لگا۔ کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی، سننا روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، حضور آئے تو آنکھوں میں آنسو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا، اب پہلے حضور نے جملے ارشاد فرمایا تم غسل دو، کفن دو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر حضور نے فرمایا نہیں، اسے غسل نہیں دینا، ارادہ بدل گیا،
प्रोग्राम तब्दील हो गए, इसे गुस्ल नहीं देना, कफन नहीं देना। हुजूर क्या करे? फरमाया इसकी अम्मा को जाके बताओ। ये नहीं फरमाया बुला के लाओ, अम्मा को जाके बताओ। हजरत अनस कहते हैं मैंने कोई निराला सा रंग देखा, कोई मुनफरद सा अंदाज देखा, हमें भेज दिया अम्मा को बुलाओ, और खुद नबी पाक उस कमरे से निकल गए और हुजूर की आंसू भी एकदम खुश हो गए, मिजाज बदल गया, परेशानी बदल। अम्मा को बुलाओ इसकी। यानी इरादा है महबूब क्या है, इरादा है खुदा क्या है। तो उसकी अम्मा को जाके खबर दी, तो माँ को तो बस को इतना बता दे कि बेटा साइकिल से गिर गया है, साइकिल से गिर गया है। अम्मा सारी रात सोती नहीं। एक शायर ने कहा था, एक मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई, मैंने एक रात कहा था मुझे डर लगता है, एक रात कहा था मुझे डर लगता है। ये अपने अपने रंग होते, अपना अपना अंदाज होता है। रमज़ान शरीफ का महीना आता तो मेरी अम्मा जी गरी का तेल मंगाती, चीज़ें मंगाती, और फिर ज़बरदस्ती मैं मना करता कि अम्मा जी नहीं आप क्या कर रही, मैं तो तेल वैसे भी ज़रा कम इस्तेमाल करता हूँ, तो रगड़ रगड़ के हो नहीं नहीं किताबें बड़ी मोटी हैं, फलां चीज़ बड़ी मोटी, इसका रंग थोड़ा निराला है। और ये जो माँ का रंग है ना, इस जैसा रंग दूसरा मिलता भी कोई नहीं दुनिया में। ये अपनी मिसाल आप ही है। अम्मा को कहा तेरा बेटा, अम्मा जरा दौड़ी, गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, रोती हुई आई। कहते हैं पीछे वो रोई, लेकिन जब बेटे की मैयत के करीब आई तो अब नहीं रोई। कहते हैं हमारे चेहरों पे नजर दे डाली और कहने लगी तुम्हारा क्लास वालों फौत हो गया, वाकई चला गया है। कहाँ? पर्दा कर गया। वाकई कहाँ? कहते अम्मा ना जमीन पे बैठी और पहले उसने बेटे के पैर उठा के चूमे, फिर सीने पे रखे, फिर वहां से उठी और इधर आई, सर सजदे में रखा और दोनों हाथ उठा के कहने लगी ऐ अल्लाह मैं दौलत के लिए ईमान नहीं लाई थी, ऐ अल्लाह मैं जायदादों के लिए कलमा नहीं पढ़ा था, मौला मैं तेरी बारगाह में आई थी तो मैं तेरे और तेरे रसूल को मान कर आई थी। खुदा बंदा मैंने मेके छोड़ दिए, ससुराल छोड़ दिया, ननिहाल छोड़ दिए, ददियाल, वो दुश्मन थे सारे दीन के, छोड़ के आई। मैंने आरजुओं का बड़ा मकान भी छोड़ा। खुदा बंदा बेटे ने जाना था, मुझे शिकवा कोई नहीं, लेकिन खुदा बंदा अब मेरे सारे कहेंगे तो तूने कलमा पढ़ा था तो तेरा बेटा ही चला गया। ऐ अल्लाह की अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। ऐ अल्लाह मेरा यकीन कहता है कि अगर तू मारने पे कादर है तो तू जिंदगी देने पे भी कादर है। खुदा बंदा काफिरों को राजी न कर, वो खुश हो जाएंगे, वो मुझ पे ताने कसेंगे, फप्तियां कसेंगे। ऐ अर्श के मालिक रहमत का दरवाजा खोल, मैं तेरे नबी की बारगाह नाज में रहती हूँ, नजर फरमा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं ईमान, यकीन और इस्तकामत के साथ उस ने जब दुआ मांगी तो हमने मस्जिद नबवी के सहन में अजीब नजारा देखा। एक माँ ने दुआ मांगी तो बेटा उठ के बैठ गया। कहते हैं बेटा उठ के बैठ गया, कलमों पर तो वो उठ के बैठा, माँ ने सीने से लगाया और माँ और बेटा लारे लगाने लगे, लोगों सुनो, कुरान भी सच्चा, इस्लाम भी सच्चा, अल्लाह भी सच्चा, ये मस्जिद नबी सच्चों का घर, और सबसे बढ़ के अल्लाह का रसूल सच्चा, अल्लाह के रसूल सच्चे, महबूब सच्चे, मस्जिद में रहने वालों में सबसे बढ़कर सच्चे, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सच्चा। फरमाते रसूल पाक को खबर दी तो महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया मेरे रब की ताकतें बड़ी ज्यादा है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह की ताकत बड़ी है। ईमान था, यकीन, इस्तकामत, बच्चा उठ के बैठ गया। हजरत अनस कहते हैं वो हुजूर के जमाने में भी हयात रहा, विशाल ज़ाहिरी के बाद हजरत अबू बकर के जमाने में भी मौजूद रहा, उमर के जमाने में भी मौजूद, हजरत उस्मान के जमाने में उसकी माँ का इंतकाल हुआ, उसने अम्मा को दफन किया और माँ के बड़े अरसे के बाद उसने पर्दा किया। जब हम उसकी तरफ देखते थे ना, देखते उसकी तरफ थे, पर हमें उसकी अम्मा का ईमान याद आ जाता था, हमें यकीन। ओ भाई, एक नौजवान था 12-14 साल का, यहूदियों का बच्चा था, बुखारी जो अक्सर हुजूर के पास आया करता, छोटे मोटे काम नबी पाक के कर देता, और कुछ भी ना होता तो आके बैठा रहता, हुजूर का चेहरा ही देखता रहता, नबी करीम का चेहरा ही देखता रहता, खुश रहता, हुजूर की ज़ियारत ही करता रहता। 2-3 दिन वो आया नहीं, बुखारी में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया मालूमात करो क्यों नहीं आया। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर बीमार हो गया।
इमाम ज़ुरकानी ने लिखा है, फरमाते वो भी अपने घर में ना रोज़ दरवाज़ा देखता रहता, रोज़ दरवाज़ा देखता रहता। उसकी माँ कहने लगी, बेटा जिनका तू इंतज़ार कर रहा है वो मुश्किल से आए, हमारा ना मज़हब का रिश्ता है ना किसी और का, कैसे आए। लेकिन हुजूर ने फरमाया चलो चलते हैं। जब मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने दरवाजे पे दस्तक दी तो इमाम ज़ुरकानी कहने लगा, अम्मा से खोलो दरवाज़ा, मुस्तफ़ा करीम आ गए। हुजूर आ गए, वाली ने दरवाज़ा खोला, नबी करीम अंदर तशरीफ़ लाए। नबी पाक का जो दस्ते मुबारक था ना, वो कस्तूरी से ज़्यादा महका करता, कस्तूरी से ज़्यादा महकता, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा होता। कहते नबी पाक उसके पास गए तो अंदर दाखिल हुआ तो रोने लगा। हुजूर ना सराहने वाली साइड पे बैठ गए, उसका सर उठा के गोद में रखा, और जब उसके बालों में हुजूर ने दस्ते मुबारक फेरा तो उसकी माँ और बाप की आंखों में भी आंसू आ गए। ये अंदाज़े करम गरीबों के साथ, हम गरीबों के साथ। वो एक हिंदू शायर था तो वो हुजूर की नाते लिखता था, तो कुछ मुसलमान भी बड़े डाढ़े होते हैं ना, उसको जाकर आने लगे, नाते तो बड़ी लिखता है, कलमा क्यों नहीं पढ़ता, कलमा भी पढ़ना। तो उसने कहा चल इस पे भी शेर सुन ले, इस पे भी तू शेर ही सुन ले, को मैं तेरा पाबंद तो नहीं। कहने लगा हो जाए इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं। इतना डर ना हो यार, मेरे साथ ये रवैया न कर, हो गया प्यार, ये हो जाया करता है, अब तू इस तरह तो ना कर मेरे साथ। हुजूर ने जब फेरा ना बालों में हाथ तो माँ बाप रोने लगे। उसने भी आंखें खोली, मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने ना उस बच्चे का चेहरा देखा। हुजूर समझ गए वक्त थोड़ा रह गया, तब हुजूर ने उसके साथ वही किया जिससे उसकी आखिरत संवर जाए। वो किया जो दर्द था मेरे नबी पाक, जो शौक रखते थे हुजूर सब के लिए, जो सब के लिए शौक रखते थे। मेरे महबूब फरमाने लगे बेटे कलमा पढ़ ले, कलमा। हुजूर का शौक यही है, यही शौक है, लोग दीनदार बन जाए, कारोबार चमक जाए, जी मुर्शद के पास गया तो रेल पेल हो गई, ये शौक ही नहीं नबी पाक का। हुजूर का तो शौक है कि सजदे का शौक हो जाए, इबादत का शौक बन जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटे कलमा पढ़ो। उस बच्चे ने अपने माँ बाप की तरफ देखा, बाप रो पड़ा, कहने लगा बेटा आज साबित हुआ है कि मैं नहीं तुझसे इतना प्यार करता जितना मुस्तफ़ा करते हैं, तो मेरी तरफ न देख, तो पढ़ ले कलमा, कलमा पर। उस बच्चे ने कलमा अभी पूरा पढ़ा ही था कि उसकी रूह परवाज कर गई। मुसलमान होते ही अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम निकले, आंखों में आंसू थे, लबों से मुस्कुरा रहे थे, और हुजूर फरमाने लगे अल्लाह का शुक्र है इसने मेरी वजह से इसे जहन्नम से आज़ाद कर दिया, कि दोज़ख से बच गया। ये शुक्र है, शुक्र इस बात का करो कि कोई हमारी वजह से दोज़ख से बच, दोज़ख से बच। बाकी तो सारे काम चलते हैं, दुनियादारी तो होती है। कोई बंदा जहन्नम वाली सड़क पे ना, एक बात और सुने और इसको ना अपने दिल में जगा दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो ख्वाहिश थी ना हमेशा से, वो ये थी कि लोग संवरे, लोग दीन पर अमल करें। एक गिरोह था सहाबा को, उनको फरमाया कि फलां जगह जिहाद के लिए जाना है तो जुमा वहां जाके पढ़ना। ये लोग जो मुफ्त के लाडले नहीं बन जाते, फ्री के, नहीं कि नहीं मेरा इश्क नहीं ज्यादा दे रहा। भाई तू, तेरा किस तरह का इश्क है, तू बात मान कि ना मानना इश्क है जी, मैं लाडला होता हूँ। ये किस तरह का लाडला? लाडला तो वो होता है जो ताबेदार होता है, जो अबरू का इशारा समझता। नबी करीम ने फरमाया सहाबा से, फरमाया जुमा वहां जाके पढ़ना। बहुत सारे लोग चले गए तो चंद लोग रह गए। जुमे की नमाज के बाद हुजूर ने पूछा गए नहीं, अर्ज की हुजूर दिल में ख्वाहिश आई थी कि इतना बड़ा जुमा कैसे मिलेगा बरकत वाला, तो यहाँ जुमा पढ़ के ही चलते हैं ताकि हमें इतने हमारे नसीब खोल जाए कि हुजूर के पीछे जुमे की तौफीक हो जाए। हुजूर प्यार बढ़ाता, आपकी इक्तदा में जुमा पढ़ना था। पता है लफ्ज़ क्या है हदीस के? हुजूर फरमाने लगे अगर तुम मेरी बात मान के वहाँ जाके जुमा पढ़ते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की ये ख्वाहिश रही, हुजूर का ये ज़ौक़ रहा। उस ज़ौक़ के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम अक्कास की मंडियों में भी गए, उस ज़ौक़ के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम मेलों में भी गए, लोगों को खड़ा कर करके रोक रोक के कहा दीन कबूल कर लो। आप गौर करें, हुजूर मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए। अब प्यार करने वाला हर आदमी ही काबिल इकराम होता है। मोहब्बतों का खिराज हमेशा इंसान को कर्जदार रखता है। मेरे जैसे छोटे आदमी से जब लोग प्यार करते हैं तो अपनी गर्दन झुकी हुई नजर आती है कि बोझ ज्यादा है, इस काबिल नहीं है जितनी मोहब्बतों का सामना। तो अब सब मोहब्बत करने वालों की दिलजोई करना, उनके मेयार पर पूरा उतरना,
ان کے معاملات کو دیکھنا یہ آسان کام نہیں ہوتا. کسی درویش نے کہا تھا میں دوست تھوڑے بناتا ہوں، اس لیے کہ دوست زیادہ ہو تو حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں. تمہیں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں سب کے حق ادا کر سکوں. نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر آدمی کی خواہش ہے حضور میرے گھر آئے، حضور میرے گھر آئے. اور جو بھی وہاں عرض گزار ہے اور پیغام دے رہا ہے، سب کے سینے بھی کھلے ہوئے ہیں، دل بھی کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں پلکیں فرش راہ کیے ہوئے ہر آدمی منتظر ہے کہ محبوب میرے گھر میں ہے. بڑا امتحان ہے کس طرح کر کے سب کی چاہتوں کا جواب دیا جائے. تو یہ ذرا دیکھیے اس امی لقبی محبوب کی حکمت اور دانائی. محبوب فرمانے لگے بھی میری جو اونٹنی ہے نا یہ معمور من اللہ ہے، میں گویا خود نہیں فیصلہ کرتا، میں نے کہا جانا ہے، جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی میں مہمان بن جاؤں گا. انداز دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے نا اونٹنی کی لگامیں اس کی گردن پر ڈال دی. اب وہ اونٹنی چلتی جا رہی ہے، تھوڑی آگے جا کے دیکھا وہ بیٹھ گئی، لیکن اس کے بیٹھتے ہی حضور اترے نہیں، محبوب بیٹھے رہے. ابھی سرکار کی اونٹنی پوری طرح بیٹھی نہیں تھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی. اور وہ اس طرح بیٹھی کہ اس طرح جم کے بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی. جب اطمینان سے اونٹنی بیٹھ گئی، نبی کریم اترے، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فراز ہوئے. یہ وہ دانائی تھی میرے کریم محبوب کی، وہ حکمت تھی کہ کسی محبت کرنے والے کو اعتراض کیا ہونا تھا، سب کا قربان ہونے کو دل کر رہا. ہمارے ہاں تو 4 بچے ہوتے ہیں اور ہم کسی ایسی دانائی کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ ان کے اندر برابری کر سکے. ہم اس سمجھ بوجھ کا لحاظ ہی نہیں کرتے. ہمارے ایک استاد تھے تو وہ اکثر کہا کرتے تھے، جن کو پڑھانے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں ان سے کہا کرتے تھے کسی طالب علم سے چیڑ نہ جانا، اسکول کے، کالج کے، مدرسے کے کسی بچے سے چیڑ نہ جانا. تم اگر کسی سے چیڑ گئے تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ تم ذاتی اناد پال لو گے. بچہ بڑا لائق ہے لیکن تمہارا فرما بردار نہیں، تم چڑھ گئے ہو، تم بات بات پہ ڈانٹتے ہو، بالآخر وہ ساری تباہی ہو گئی، بدگمان ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام امی ہے لیکن یہ میرے محبوب کی نبوت کی اعلیٰ دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے محبوب کو حکمت، تدبر، دانائی، ہم دانا نہیں ہوتے، شعور میں رکھتے، فہم و فراست کا. وہ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے ایک معبر کو بلایا، تعبیر کرانے والے کو، اس سے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا جناب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے. اب وہ بادشاہ اتنا ناراض ہوا، اس نے تعبیر کرنے والا بھی قتل کروا دیا. اس نے کہا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں نہ بھائی ہو، نہ بہن ہو، نہ بچے ہو، نہ بیوی ہو، نہ ماں ہو، نہ باپ، مروا دیا. ایک اور آدمی تعبیر کرنے والا تھا پر وہ دانا بھی تھا، اس کو بلایا اور بلا کر بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تعبیر بتائے. تو کہنے لگا بادشاہ مبارک ہو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا. بادشاہ نے اسے انعام دیا، کہا تو جیتا رہ، کیا تو نے بات کی ہے، اب میری بات کو سمجھیے گا. تعبیر اس نے بھی وہی بتائی ہے جو پہلے والے نے بتائی، لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے رشتہ دار تیری زندگی میں فوت ہو جائیں گے، اس نے اسے بھی مروا دیا. بات اس نے بھی وہی کی ہے، لیکن بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. آپ بے سلیقہ بات بھی کریں پر سلیقے سے تو کریں. کوئی لہجہ ہی نہیں، حکمت ہی نہیں، کوئی دانائی نہیں. دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے لمبی عمر عطا کرے گا، تو بات پھر بھی وہی ہے کہ باقی سارے چلے جائیں گے اور آپ موجود ہوں گے، لیکن اس میں دانائی ہے نا، حکمت ہے نا. فتح مکہ کا موقع تھا، عجیب حالات درپیش ہوئے. اسلام کا جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، بڑے عظیم صحابی.
बदर के मौके पर जिस आदमी ने अपने जज्बात से माहौल गरमा दिया वो हजरत साद बिन उबादा, अगली सफों में मुजाहिदों की रहने वाले, माल खर्च करने वाले, मैदान आदि। लेकिन झंडा उनके हाथ में था। हालात कुछ इस तरह के पैदा हुए कि बाद लोगों ने मुतालबा किया इनसे झंडा लिया जाए, और कोई माकूल वजह नहीं थी, लेकिन बाज़ औक़ात ना हालात ऐसे बन जाते हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से मुतालबा हो रहा है कि आप जनाब साद बिन उबादा से झंडा ले लें। ये नौजवानों से बिलखुसूस अर्ज़ करूँगा कि इल्म भी तभी बंदे को फ़ायदा देता है जब उसके साथ कुछ बंदे को शऊर भी हो। हुनर भी तभी फ़ायदा देता है जब उसके साथ कुछ न कुछ दानाई भी हो। शेर सादी फरमाया करते थे, एक मन इल्म होना तो संभालने के लिए 10 मन अकल की भी ज़रूरत होती है, वरना ज़ाया हो जाता है सारा। दानाई, तदब्बुर, ये देखिए उम्मी लकबी माबूल से हमने दानाई सीखनी है, तदब्बुर सीखना है, फहम व फिरासत सीखनी है। जिंदगी में शऊर किसको कहते हैं, ये हुजूर हमें सिखाएं का जनाब हज़रत साद बिन उबादा को उतारना है। अब बड़े बड़े दाना सहाबा कह रहे थे, या रसूलल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, हालात इस तरह के हैं, कैसे ये फैसला करें। हुजूर ने फरमाया कोई मुश्किल नहीं, उतार देते, बदल देते, उनसे मनसब ले लेते। या रसूलल्लाह ये आसान नहीं है, कैसे? फरमाया अभी देखना तू। ये अल्लाह ताला ने मेरे महबूब को हिकमत की खजानों की कुंजियां अता फरमाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया साद बिन उबादा झंडा दे दे आप वापस। अब आप लश्कर के अलम बरदार नहीं रहे। उन्होंने बोझल हाथों से झंडा थमा हुआ था, परेशान थे कि कोई ऐसी बात नहीं। जब हुजूर ने कहा दे, वो गुलाम थे, सानू कैद सज्जन दा कहना है, वो जेंदे रखे ऐसा उलझ रहना है। उन्होंने उसी वक्त झंडा थमा दिया, खुश होके थमा दिया। लेकिन ये मेरे महबूब की हिकमत है, महबूब ने जनाब साद बिन उबादा से झंडा लिया और करीब उनके जवान बेटे खड़े थे, महबूब ने झंडा उन्हें दे दिया। फरमाया कमान तेरे हाथ में है। बाप का कद उस वक्त 10 फुट जमीन से ऊंचा हो जाता है जब उसका बेटा उसकी जगह पे बैठ जाता है। वो कहता मेरी फिक्र गई, मैं अब बेफिक्र हूँ। जब उन्हीं के बेटे को वो मनसब मिला, तब हज़रत साद बिन उबादा के चेहरे की कैफियत ये थी कि वो गोया अपनी आंखों और अपने चेहरे से बता रहे थे, मैं तो खुद झंडा पकड़ के इतना राजी नहीं था जितना अपने बेटे के हाथ में देख के राजी। ये आप तदब्बुर सीखे दान। मैं अपने नौजवानों को देखता हूँ जज्बाती मिजाज, भागते दौड़ते, बेचैन, परेशान, उलझे हुए। अभी मैं मुल्क से बाहर था, मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है। बैरून मुल्क जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा परेशान होते हैं पाकिस्तान के हालात को लेकर, वो ज़्यादा खबरें देखते हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे पाकिस्तान के हालात, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, उतार चढ़ाव है, जिंदगी के साथ चलता है, बेचैनी नहीं, बेकरारी नहीं, उलझाव नहीं, हर वक्त का इस्तराब नहीं। दानाई, तदब्बुर, हिकमत, वामला फहमी, ये हमें हमारे रसूल पाक ने अता फरमाई। आप अपनी जिंदगी को सलीके से गुजारे, कीमती बनाए। आप अपने वजूद से बड़ा काम ले सकते हैं, लेकिन क्या है, दानाई नहीं है, जज्बाती मिजाज। और जज्बातीपन हमारी तबीयतों का हिस्सा है। जज्बाती फैसले, जज्बाती बातें। हमारे देहातों में चौधरी फैसला किसके हक में करते हैं, जो पहले आ जाए, वो सच्चा है या झूठा है, आ पहले गया है, बस ओले मैनू पहला आख्या तुसी ते आए ही नहीं, इसी बात में फैसला दे दिया। दानाई, तदब्बुर, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। उम्मी ना कभी है हुजूर। और दूसरी बात, इंसान के पास जो सबसे कीमती चीज होती है ना, वो उसका किरदार होता है। आपने जिंदगी में नकूश क्या छोड़े, आप जहाँ रुके, जहाँ बैठे, ये ऐसा तो नहीं जिंदगी में कि ये 10 दोस्त पुराने, ये 10 दोस्त आजकल के हैं और इनके दरमियान भी गीबतें जारी है, बस काम खत्म होने के करीब है, और फिर उसके बाद और कोई 4 दोस्त हम तलाश करेंगे। अच्छे नकूश नहीं छोड़ते। कितनी खुशियों से रिश्ते तय पाते हैं, लेकिन वो थोड़ा वक्त नहीं गुजरता तो सारी सोचे, सारे नजरियात गदले और मैले कुचैले होने लग जाते हैं। उस सारी मोहब्बतों को जंग लगने लग जाता है। अजमत किरदार, बुलंदी, आपके अफकार, आपका अच्छा गुमान, आपकी सोचें, आप हैरान होंगे। अल्लाह ताला ने नबी पाक का वजूद ही मौजज़ा बनाया है, लेकिन जब हुजूर के अपनों ने दलील मांगी ना, अपनों ने,
अपनों को मुतमिन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। करीबियों ने दलील मांगी कुरैश मक्का ने कि आप नबी है तो दलील दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने अपनों को मौजज़ा नहीं दिखाया, बल्कि कुरान मजीद फरमाता है कि महबूब ने कहा फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। मैं कोई बाहर से नहीं आया, मैंने अपनी इससे पहले की सारी उम्र तुम्हारे दरमियान गुजारी है, 40 साल यहाँ गुजारे, अपने माँ की गोद में भी, नाना के कंधों में भी, जनाब खदीजा का दूल्हा बन के भी, बेटियों का बाप बन के भी, मैंने सारा वक्त तुम्हारे बीच गुजारा। अफ़ला ताक़िलून, तुम्हें अकल नहीं? भैया महबूब उनसे फरमा रहे हैं को मेरी जैसा सच्चा है तो ला के दिखाओ। बाहर से नहीं आया, तुम्हारे दरमियान रहा। तो यार ये मुश्किल काम होता है, चारों जानब माहौल खराब और बंदा फिर ठीक रहे। अक्सर लोग तो अपने बच्चे की गलती नहीं निकालते, कहते दोस्तों ने खराब कर दिए। अम्मा कहती है मुंडा मेरा ठीक ही, दोस्ता ने खराब करता है। मैंने कहा चले अच्छी तरह से सोच ले, हो सकता है दोस्त ठीक हो, आपके बच्चे ने सारा माहौल गड़बड़ कर दिया हो। ये जान छुड़ाना तो आसान है, लेकिन सारे माहौल के अंदर किरदार की अजमत। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत लिखे ना, इस्लाम कबूल कर लो, तो कैसर रूम को भी खत लिखा। कैसर सियाना आदमी था। सियाने लोग जो होते हैं वो ज़मीनी हकायक देखते हैं, जज्बाती फैसले नहीं करते, वो मामला फहम होते हैं। आजकल जिस तरह मैं और आप है ना तस्वीरों के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लाइक्स, व्यूज़, कमेंट्स, इसी पर जिंदा है। लोग इन पर वक्त नहीं गुजारते थे, उस समझदार लोग। कैसर रूम के पास मेरे महबूब का खत गया, उसने फौरन नहीं फैसला किया, कहने लगा कोई, वरना बहुत सारे ऐसे बदबख्त भी थे माज़अल्लाह जिन्होंने हमले की तैयारी शुरू कर दी, हमें खत लिखा है इस्लाम कबूल करो हम हमला करें। लेकिन ये सियाना आदमी था, इसने लोगों से कहा यहाँ अगर कोई सरदार आया हुआ हो ना, मक्के का तिजारत की गरज से सरदार आया कर दे, कोई सरदार आया हुआ हो तो मेरी मुलाकात कराओ। जनाब अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे और हर जंग में कुरैश मक्का की लीड वो करते थे। वो उन दिनों वहाँ गए हुए थे, तिजारत की गरज से बुला लिया। अब कैसर ने सामने खड़ा किया। बुखारी शरीफ से लेकर कुतुब सीरत में तमाम जगह कुतुब हदीस में आपको अल्फाज के इख्तलाफ के साथ लेकिन मफहूम एक ही ये रवायत मिलेगी। कैसर ने सवाल करने शुरू किए जनाब अबू सुफियान से। पहले पूछा आप कौन है? कहा मैं सरदार हूँ। को रिश्ता? कहने लगे जिस महबूब ने आपको खत लिखा है मैं रिश्ते में चचा होता हूँ। कहने लगे बताइए इस महबूब ने दावा नबूवत किया है, उनके खानदान में माजी करीब में किसी और ने भी किया है? कहा नहीं। कहा को बादशाह गुजरा हो उनके खानदान में? करीब करीब का कोई नहीं। कहा ये बताइए उनके मानने वाले अमीर है कि गरीब? तो वो सुफियान कहने लगा माड़े माड़े बंदे, माड़े माड़े बंदे। मैं आप मुझसे नाराज ना होइएगा, लेकिन महफिल मिलाद में भी माड़े माड़े बंदे आते हैं, सियासी समाजी लोग भी आते हैं किसी से उधारी टोपी लेके। उनका ख्याल होता है चलो मिलाद की महफिल की भी क़यादत जल्दी से हम ले ले, जुलूस भी जल्दी से कब्जा कर ले, कल कोई लोगों को पास भी जाना है इलेक्शन के दिनों। लेकिन गरीब नहीं। पर हमारा हाल ये होता है कि जिसको 35 साल हो गए फजर की अजान पढ़ते हुए बेचारा मिलाद की महफिल की भी सदारत नहीं कर सकता। वहाँ भी जिनके हाथों में नोटों की दथियाँ अच्छी हो उनकी सीटें अगली होती। ये ज़ौक़ ठीक नहीं, ये इस महफिल के विकार के हक में नहीं। ये बात ये बड़ी बुलंदो बाला महफिल, इसका मेयार और होना चाहिए। पूछा सरदार ने अबू सुफियान बताइए मानने वाले कौन है? का गरीब गरीब। पर मैं ये बताओ तुम्हारी कभी उसे जंग भी हुई है? का हुई है। नतीजा क्या निकला? का कभी हम फतह याब हुए कभी वो। कहने लगा था ये बताए उनके मानने वाले घट रहे हैं बढ़ रहे हैं? अबू सुफियान कहने लगा जी बढ़ तो रोज बरोज रहे हैं, नतीजा खेज हो रही है दावत। उसने कहा अच्छा ये बताए जिन्होंने दावा नबूवत किया है क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं कि मैं एक मिनट के लिए सोच में मुखालिफ था ना, मुखालिफ राय दे रहा था, लेकिन मेरे दिल के अंदर से आवाज़ आई माज़अल्लाह मैं उन्हें जादूगर कहूँ, शायर कहूँ, साहिर कहूँ तो शायद कोई शख्स मेरी बात पर तवज्जो दे।
पर नबी पाक ने झूठ बोला, ये तो मानेगा ही कोई नहीं। कहते मैंने कहा बात बिल्कुल सच्ची करनी है। वो मेरे सामने पैदा हुए, सामने जवान हुए, सामने उनके बाल सफ़ेद हुए, पर उस महबूब की ज़ुबान से जो भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। मैं कैसे आपको ये बात अर्ज़ करूँ कि बगैर वजह के लोग झूठ बोलते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं, कोई दुनियावी नफ़ा भी नहीं, जानबूझ के डींगे मारते बढ़ के, कोई लेना देना ही नहीं, बिला वजह झूठ। ये इंसान के किरदार को दागदार कर देता है। दुनिया के किसी बड़े ताजर पर हाथ रखिए, बड़े से बड़े बिजनेसमैन पर, उससे पूछिए कि तुम्हारी बिजनेस में कामयाबी की वजह क्या बनी? इन्वेस्टमेंट ज्यादा की थी, पढ़े लिखे ज्यादा थे? आपको हर बिजनेसमैन कहेगा सिर्फ अल्लाह ने मेरा मार्केट में एतबार बना दिया। जिसका एतबार मार्केट में अच्छा होता है, लोग कहते हैं बंदा ठीक है, सच बोलता है, उसका कारोबार चलता है। कभी झूठ और बददियानती और फरेब से भी कौमें आगे बढ़ी। अबू सुफियान कहते हैं मुझसे पूछा, एक सवाल ये भी था इन सवालों में कि ख़ानदान कैसा है, तो मैंने कहा ख़ानदान तो कुरैशी और हाशमी है, आला ख़ानदान महबूब का। तो कहते हैं मैंने कहा बादशाह को नतीजा ही दे, इतने तूने सवाल किए। तो कहने लगा नतीजा तो निकल आया। तुमने कहा मानने वाले गरीब लोग हैं, तो नबियों पर हमेशा पहले गरीब लोग ही मान लाते हैं। तुमने कहा मानने वाले बढ़ रहे हैं, तो ये उनकी सदाकत की दलील है कि हर रोज दावत और पैगाम और मानने वाले बढ़ रहे। तुमने कहा वो आला नस्ब है, तो नबी अल्लाह हमेशा ऊंचे खानदानों में भेजा करता है। तुमने कहा उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, तो सरदार सच बताना, जो बंदा बंदों से झूठ नहीं बोलता वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया। नतीजा तो निकल आया। असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। किरदार की जो अजमत है ना, किरदार की, यार आपकी और मेरी जिंदगी कुछ उसूल तो होने चाहिए, कुछ कायदे, कुछ ज़ाब्ते। जिधर की हवा हुई उधर के हो गए। आज का ये नया वाला फैशन है, लिहाजा ये अपना लो। भाई हम कोई हवा के दोष पे हैं, कोई लवारस हैं, अपनी कोई तहजीब नहीं, तमद्दुन नहीं, मिजाज नहीं, तबीयत नहीं, यानी जिस तरह का माहौल है उस तरह के बन जाओ। किरदार में कुछ कायदे जिंदगी में बनाने चाहिए, कुछ उसूल वज़ा करने चाहिए, कुछ चीजें तय करनी चाहिए कि मुझे इन हुदूद से आगे नहीं बढ़ना। मोमिन की अपनी एक जाती शख्सियत होती, उसका एक अपना रख रखाव होता है, उसकी अपनी एक वज़ादारी होती। आप जाइए अपने बुजुर्गों से मिलिए, देहातों के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं बस भाई मैं दोस्तों के साथ आता जाता था, घूमता फिरता था, अब ये काम नहीं करना, अब मेरे बेटे को मेरा जूता पूरा आने लग गया, अब मुझे वज़ादार होना। मैं कैसे अपनी मिल्लत के नौजवानों को समझाऊं कि तू घुटनों तक अगर अपना लिबास आधा कर ले तो पता नहीं तेरी कितनी को गर्मी कम हो जाती है और किस कदर ज़्यादा आसूदगी और आसानी महसूस करते। और आके घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, माँ है। देखिए एक अपनी वज़ादारी भी होनी चाहिए, उसके कुछ कायदे ज़ाब्ते, उठना बैठना, उसूल भी होने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत किरदार का ये आलम था कि अरब शरीफ के अंदर कवारी औरतें बड़ी ही शर्मो हया वाली होती। लोग मिसाल देते कि तू तो कवारी लड़की की तरह शर्मो हया वाला। कुर्बान जाए सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम अरब की कवारी लड़कियों से भी ज्यादा हया वाले थे। हुजूर हया वाले, मतानत, संजीदगी, कभी शोर गुल न करते, कभी बाजार में नजरें उठा के ना चलती, कभी महबूब की जुबान से माज़अल्लाह किसी ने कोई कमजोर जुमला नहीं सुना। ये क्या बात हुई, मुझे किसी ने गुस्सा दिलाया था, मैंने गालियां दे दी, तो आपके उसूल किधर गए, कायदे किधर गए, ज़ाब्ता किधर गया? ये कैसे हो गया कि आप बाउसूल आदमी थे फिर भी आपकी जुबान से बाजारी जुमले निकल आए? ये हो नहीं सकता ना अगर आपने कोई उसूल जिंदगी में बना रखे। तो अज़मत किरदार, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की
जिंदगी का एक बुनियादी अल्सर है, बुनियादी। और फिर हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक शान और बड़ी इम्तियाजी अता फरमाई, बड़ी अनोखी। वो ये थी कि अल्लाह ताला ने ना महबूब को फसाहत व बलागत अता फरमाई, यानी बात कहने का जो सलीका, जो अंदाज हुजूर जानते हैं ना, ये किसी और को नसीब। हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा बातें करने का रिवाज है, उसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान के जुमले बेवकूफ़ हो जाते हैं। लोग कहते हैं यार आदत है इसकी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास आप बैठे ना तो कभी कभी तेल की ज़रूरत पड़ जाती है कि थोड़ा थोड़ा यहाँ लगा ले बंदा, से कि इतनी बातें सुनाते, इतनी बातें। और आजकल तो एक और रिवाज भी हो गया, कहते हैं कता कलामी माफ़ और साथ ही बात शुरू। तो मैं कईयों से कहता हूँ पहले पूछ तो ले हमने माफ़ किया भी है कि नहीं। आप तो गन पॉइंट पे माफ़ी ले रहे हैं, आपने हुक्म दायर किया है, कता कलामी माफ़ और आप शुरू हो गए। गुफ्तगू में, लहजे में, दावत देने में, पैगाम देने में, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा रोज़ बच्चों को भी नहीं डांटना चाहिए, रोज़ नहीं नसीहत करनी चाहिए, वरना नसीहत बेवकूफ़ हो जाती है। रोज़ ही इंसान को इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए, वो उसकी तबीयत ठहराव वाली, यानी सुकूत जो होता है ना, चुप खामोश आदमी, वो लगता है कि कोई तूफान लिए बैठा है, लगता है कि ये इस वक्त किसी खास गहराई और गहराई में उतर कर कोई अच्छी मंसूबाबंदी कर रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी फसाहत और बलागत अता फरमाई, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इल्म के खजानों की कुंजियां दी। सरकार जब बात करते ना तो सहाबा फरमाते हर जुमला दूसरे जुमले से जुदा होता। इस तरह हुजूर बोलते कि अगर कोई लफ्ज गिनना चाहता था तो गिन भी सकता। यानी बात वो हमारे यहाँ अक्सर ना महफिल में ऐसा होता है कि वो बाज़ों का बड़ी सादी सी बात भी इतने जोश के साथ की जाती है कि मेरी तरह का तालिब इल्म सोचने लग जाता है कि ये बात तो आराम से भी की जा सकती थी, इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत है। इस सादी सी बात थी, आप बड़े खूबसूरत लहजे में भी कह सकते थे। अल्लाह ताला ने महबूब को फसाहत दी, बलागत दी, मामला फहमी दी, और हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम बड़े ठहरे ठहरे अंदाज में बात करते। लेकिन जब बात करते तो हुजूर ना बात का रुख बदल देते, यानी बंदा सोच रहा है इस रास्ते जाने की, लेकिन करीम की हकीमाना बात बंदे का रास्ता चेंज कर देती। वो बिल्कुल इंसान डायरेक्शन बदल लेता कि नहीं यार ये रास्ता ठीक है। आप बात को समझिएगा। एक होता है बंदे के पास माल नहीं तो वो फकीर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अमीरी में फकीरी करते हैं, मालदार होते हैं, बड़ा अल्लाह ने दिया होता है, लेकिन उनके मिजाज से दौलत नहीं छलकती, ओहदा नहीं छलकता। वो दरवेशों के साथ बैठते हैं, सादा तर्ज ज़िंदगी। ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का खासा है, हुजूर की नबुव्वत की दलील है कि नबी पाक ने फ़कीराना ज़िंदगी को इख्तियार किया। आप ज़रा अंदाज देखिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं मिलने के लिए पहुंचा तो मोटे बान की चारपाई, हुजूर उस पर आराम फरमाए। फरमाते जब मैं गया तो सरकार उठ के बैठे, और जब हुजूर उठे ना तो आपकी कमर मुबारक से ना ज़रा कपड़ा हटा। जिन्होंने पुरानी मोटे बान की चारपाइयाँ देखी ना, मुंजदी मंजी जिन्हों कई दस, तो वो कभी उठते थे ना सो के तो कमर पर निशान छोड़ती थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मिजाज के लिहाज से दलेर आदमी थे, लेकिन जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महबूब को इस हाल में उठते देखा तो आंखों में आंसू आ गए। और हज़रत उमर में ना एक फ़िक्र बयान की, एक डायरेक्शन बयान की, अपनी सोच अर्ज़ की हुजूर की बारगाह में, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये कैसर और किसरा अल्लाह के दीन के दुश्मन है और इतनी आरामदेह जिंदगी गुजार। बहुत सारे लोग सवाल नहीं करते वो फलां मुल्क देखो गैर मुस्लिम है, फिर आसूदा हाल कितना है। मेहनत ज़रूर करे, जद्दोजहद ज़रूर करे। ये बात करने का मकसद ये नहीं कि मेहनत छोड़ दी जाए, खूब मुशक्क़त करे। जद्दोजहद तो इंसान को ज़िंदा रखती, उससे तो पता लग चलता है कि इंसान के अंदर हूँ मौजूद है। जो बिल्कुल हिलते जुलते नहीं, हरकत नहीं करते हो तो मुर्दे हो जाते हैं।
تو زندگی زندہ دلی کا نام، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے؟ لیکن یہ سوچ کا یہ زاویہ بھی دیکھیے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسودہ آسان زندگی گزارتے اور آپ محبوب ہو کے. اب یہ ایک زاویہ ہے سوچ کا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس زاویے کو نیا رستہ دیا. یہ سوچ یہ ہے کہ آپ محبوب ہیں اور ظاہری طور پر یہ وقت مشکل ہے، دوسری جانب دشمن ہے، اور یہ گاؤں تک یہ لاؤ لشکر، یہ آسان زندگی. حضور نے سوچ ہی بدل دی. فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لے اور آخرت میں رسوا ہو جائے؟ اور فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہم دنیا میں تھوڑی سی مشقت اٹھائے اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ یہ ایک ایسی سوچ تھی کہ جناب عمر کہتے ہیں میرا زاویہ نگاہ بدل گیا کہ جنت میں جئیں گے من چاہی زندگی، وہاں اللہ کے انعامات سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے.